Father, let me call thee Father, 'tis thy child raised us to thee. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me know, implore and wait, all my sins I now detest them, never will I sin again. By my sins I have abandoned, right from here to heaven above, where the sins rejoice forever in a boundless sea of love. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore and wait, all my sins I now detest them, never will I sin again. See our Savior bleeding, dying on the cross of Calvary. Through that cross my sins are made him, yet he bleeds and dies for me. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore and wait, all my sins I now detest them, never will I sin again. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore and wait, all my sins I now detest them, never will I sin again. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Please sit down. Now we prepare for confession, and the next topic that we're going to take is sin, consequences, and reconciliation. Touch on that topic. It will come part of it. Yeah, it will come part of it. At least 1 hour. Okay. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Before we come to sin and consequence of sin and repentance,
the most important part which Father just said to take also. There has been a little change of plan in the sessions. So since we are going in for a confession immediately after tonight probably or tomorrow early morning, so that's why I'm taking sin. But without touching on forgiveness, I think it will be no point in going into confession unless you forgive. So let us understand that what is forgiveness and why forgiveness. What is forgiveness and why forgiveness? A lot of blockages and bondages in our life exist due to lack of forgiveness, letting go many things in our life, and disassociation from people, from things, and from events of our life. Am I very clear? Forgiving people, letting go whatever has happened, and disassociation मतलब उन चीज़ों के साथ जो लोग हैं, from people, wrong people, disassociate, wrong events which have happened in the past, all the past that is there, we let go, wrong circumstances, negative events, नेगेटिव कुछ भी हुआ होगा उससे अपने आप को डिसएसोशिएट करना है, मतलब आपको अलग करना है, सो दैट द ब्लॉक्स एंड बॉन्डेजेस आर रिमूव्ड. प्लीज अंडरस्टैंड, ब्लॉक्स एंड बॉन्डेज कोई फैशन नहीं है. लोग क्या सोचते हैं ना, कुछ भी हो गया, अरे मेरे को ब्लॉक है, बॉन्डेज है, इसने ऐसा किया वैसा किया, ब्लॉकेज है, बहुत बॉन्डेज किया हुआ है, मेरे को कुछ नहीं है. आप उसको छोड़ देने का है. शैतान ऐसी चीज है, वह बाइबल क्या कहता है, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल गो. रेजिस्ट मीन्स ए भाग. शैतान गेट बिहाइंड मी. जीसस ने क्या कहा था पीटर को, शैतान गेट बिहाइंड मी. जब हम शैतान को बोलेंगे भाग जा, तो वो हमारे पास नहीं आएगा. इधर हमारा का प्रॉब्लम क्या है, हम शैतान को जाके गले लगाते हैं, आते बोले बैठ आके चाय पी, खाना खा, नाश्ता कर, है ना. फिर वो शैतान कैसे जाएगा, और बाद में बोलते हो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है, बॉन्डेज है, बॉन्डेज है, ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज बॉन्डेज है तुम्हारे ऊपर है, निकालो उसको, और कोई आएगा नहीं. ब्रदर आई गॉट बॉन्डेज, रिमूव इट. फादर ब्लॉकेज है, निकालो. क्या निकालेगा, जादू का छड़ी है ब्लॉकेज बॉन्डेज निकालना. क्या ब्लॉकेज है बॉन्डेज, ब्लॉकेज बॉन्डेज तुम्हारे अंदर है. मेरे पास कोई भी काउंसलिंग के लिए आता है, उसको मैं 3 चीज़ बोलता हूँ, वेरी क्लियर. कुछ भी स्टार्ट करना है ना तुमको, प्रेयर इंटेंशन है ना, पहले 3 चीज़ करो. बेसिक जो है हमारा कैथोलिक फेथ का, वो कंप्लीशन करो. नंबर 1, forgive. Make a list of all people who have hurt you and harmed you in your life. That is the first thing I tell people. मैं सबको पहले ये बोलता हूँ, पहले भाई जो भी कुछ करना है ठीक है, तेरी प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करेंगे और सॉल्यूशन भी होगा, 100% होगा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नाम लिखो किन किन लोगों ने तुमको तकलीफ दी है. और सबसे बड़ा उसमें यही रहता है, पति रहता है, पत्नी रहती है जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है, फिर माता पिता भाई बहन, अपने घर के दुश्मन ज़्यादा रहते हैं बाहर वाले छोड़ के. फिर बाहर वाले रहते हैं, हाँ भाई किसी ने ऐसा इवेंट हो गया किसकी लाइफ में, किसी को बलात्कार हो गया, रेप हो गया, किसी को ज़बरदस्ती की गई, किसी को चाइल्डहुड में किसी बड़े आदमी ने रेप कर दिया, कोई अंकल ने, कोई कज़िन ने, कोई घर वाले ने, ऐसे बहुत इंस्टेंसेस आते हैं. उसकी वजह से अटक जाते हैं, उनका लाइफ आगे नहीं बढ़ता है. सी दैट इज वाई दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड. उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉकेज है, बॉन्डेज है. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पीपल हु हैव हर्ट यू एंड हार्म्ड यू, एटलीस्ट टिल यू रिमेंबर. और बड़ा चोट रहेगा तो भूलेंगे नहीं कभी, इसलिए तो इतना तकलीफ हो रहा है. वो भुलाने के लिए आप नाम लिखो, सबका नाम लिखो. ओके. फिर मैं बोलता हूँ दूसरा, एक गुड एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस करो. एक मिनट अपना पाप, खुद का जो पाप स्वीकार का लिस्ट बनाओ कि मैंने क्या क्या पाप किए हैं, बड़े से लेके छोटे, सब पाप का लिस्ट बनाओ. और ये जो फॉरगिवनेस का लिस्ट बना है ना, मैं आपको एकदम सिंपल कैथोलिक फंडा बता रहा हूँ, कैसा प्रोसीजर है. झमेले में मत पड़ो ज़्यादा, ऐसा करने का वैसा करने का, उधर जाने का, पहाड़ पे चढ़ने का, जमीन में जाने का, इधर जाने का, कुछ नहीं करने का है. व्हाट जीसस सेड, यू विल नॉट वर्शिप ऑन द माउंटेन, नॉट इन द टेम्पल, बट ऑल द रियल बिलीवर्स विल वर्शिप द फादर इन स्पिरिट एंड ट्रूथ. तो स्पिरिट एंड ट्रूथ के साथ आपको आने का है. आपने लिस्ट बनाया, जीसस थ्रू द होली स्पिरिट हेल्प मी, मेरी मदद करो, दैट आई मे फॉरगिव ऑल दीज पीपल इन माई लिस्ट अनकंडीशनली. नंबर 2, that I may love these people unconditionally. Number 3, I may bless all these people unconditionally.
Number 4, I may pray for these people daily. Number 5, what? I will send it to you later on, don't worry. You contact me on WhatsApp. ये सब स्टैंडर्ड लिस्ट है, मैं आपको भेजेगा. यू वांट टू राइट डाउन क्विकली, यू हैव टू बी अ शॉर्ट एंड वाला कोई है क्या? अच्छा, आई विल टेल यू स्लोली. फॉरगिव अनकंडीशनली. अनकंडीशनली इज कॉमन. लव अनकंडीशनली, bless unconditionally, pray for them and do good to them. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus. तो ये 5 चीज लिख ली आपने. अच्छा, ये तो कोई कर नहीं सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ. Tell the that is why we are telling Holy Spirit. See, Jesus has got simple solution for complex problem. The world will give you complex solution for simple problem. Jesus give very simple solution. ऑल ये नहीं मालूम ना तुमको, मांगना मेरे से, मैं देता हूँ. होली स्पिरिट हेल्प मी टू फॉरगिव, आई कैन नॉट फॉरगिव. डेफिनेटली यू कैन नॉट फॉरगिव. एक अम्मा आई मेरे पास, ब्रदर बहुत बात करता है, आप इधर से फॉरगिवनेस करता है, तुम्हारा बेटी का रेप हुआ क्या? नहीं हुआ. तो फिर क्या को बोलता है फॉरगिवनेस? मैं कैसे फॉरगिव, मेरा बेटी का रेप हुआ, मैं कैसे फॉरगिव करूँ? मैं बोला अम्मा यू आर टोटली राइट, यू कैन नॉट फॉरगिव, आई ऑल्सो कैन नॉट फॉरगिव. मेरा तो छोटा बीबी के साथ झगड़ा होता है, रात भर में फॉरगिव नहीं कर सकता हूँ, खुद करता हूँ अंदर ही अंदर, बाद में जाके किधर फॉरगिव करने का होता है. ये हम वीक है, वी आर ऑल वीक पीपल, अंडरस्टूड. बट हमारी ताकत है यीशु. जब हम यीशु के पास आते हैं, जीसस हेल्प मी टू फॉरगिव माय वाइफ, जब वाइफ को फॉरगिव करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, यीशु का मदद मांगना पड़ता है, खुद से नहीं होता है. तो जिसने तेरी बेटी को रेप किया उसको क्षमा करने के लिए तो डेफिनेटली यीशु ही कर सकता है, और यीशु करेगा. तू मांग. अच्छा, फॉरगिव क्यों करना है? क्योंकि जब तक तू फॉरगिव नहीं करेगे तेरे को फॉरगिवनेस नहीं मिलेगा. वर्ड ऑफ गॉड वेरी क्लियर है. अनलेस यू फॉरगिव, फादर विल नॉट फॉरगिव यू. और एक आदमी आया मेरे को नहीं मांगता फॉरगिवनेस जीसस क्राइस्ट का. कौन है जीसस क्राइस्ट? मेरे को फॉरगिवनेस नहीं मिलेगा तो चलेगा, मैं ऐसा ही रहूँगा, खड़ूस रहूँगा, मैं उसको छोड़ेगा नहीं, उसका जान लेके देगा, उसको बताएगा कि मैं कौन सा खानदान का है. बोला कर बेटा, तू कैथलिक है? बोलता हाँ. मास को जाता हूँ, यस. प्रेयर करता हूँ, हाँ. तो बोला तो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस नहीं मिलेगा तो तेरा फायदा क्या कैथलिक का? जीसस मरे क्यों? तेरे और मेरे पापों की क्षमा के लिए. और पापों की क्षमा से क्या होता है? द साइकिल ऑफ सिन एंड द रिएक्शन ऑफ सिन इज ब्रोकन. जो मैंने सीखा था बचपन से, कर्म किया तो भोग मिलेगा, कर्म किया तो भोग मिलेगा, कर्म किया तो भोग मिलेगा, कर्म और भोग के साइकिल में मैं घूमे जा रहा था और मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था. जब तक यीशु नहीं आया, जब तक यीशु मेरी जिंदगी में आया, और जॉन 1:29 मैंने पढ़ा नहीं, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. तभी मेरी आंखें खुली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए. I got goosebumps. कौन है ये Lamb of God? Jesus Christ. If you accept him as your Lord and Savior, and you take a decision never to sin again, and tell the Holy Spirit to help you to resist temptation and not to sin, you are saved. Your sins are forgiven. Hallelujah. यही तो शक्ति है यीशु की. बाकी क्या है यीशु के? पैसा दे दे, पैसा ले ले, ये क्या है? नौकरी दे दे, पैसा दे दे, लाइफ पार्टनर दे दे, बच्चा दे दे, ये क्या थोड़ी यीशु करने का, इधर टाइम पास करने को बैठे. फॉरगिवनेस ऑफ सिंस. Seek the kingdom of God and the righteousness of God. Matthew chapter 6:33. And all other things shall be given to you. बाकी का जो भी है वो सब आउटकम है. हम बोलते हैं पैसा का इनकम दे, पैसा इनकम नहीं है, पैसा आउटकम है. ब्लेसिंग्स आउटकम है, इनकम नहीं है. तुम्हारे करने की वजह से कुछ नहीं हुआ है. इट इज नॉट बाय योर वर्क्स दैट यू हैव बीन सेव्ड, बट इट इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ दैट यू हैव बीन सेव्ड, नॉट बाय योर ओन वर्क्स दैट यू कैन बोस्ट ऑफ. हालेलुया. तो कहाँ चले? अगर यीशु की फॉरगिवनेस नहीं चाहिए तो डोंट कॉल योरसेल्फ अ क्रिश्चियन और अ बिलीवर और अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट. फॉरगिवनेस तो चाहिए. दैट इज व्हाट जीसस डाइड ऑन द क्रॉस फॉर. इन दिस सीजन ऑफ लेंट जीसस हैज डाइड फॉर यू एंड फॉर मी. फॉर व्हाट? फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस. सो दैट एक्शन का रिएक्शन विच इज द लॉ ऑफ नेचर. एक्शन एंड रिएक्शन इज द लॉ ऑफ नेचर. आप एक्शन करोगे, रिएक्शन आना. गलत एक्शन किए हैं, सबने किए हैं, सभी पापी है. वर्ड ऑफ गॉड कहता है ऑल आर सिनर्स. If you have done a sin, reaction will come. Nobody can stop that. Who can stop it? Only Jesus Christ. Saint Paul कहते हैं कि all the good that I want to do, I don't do it. And all the bad that I don't want to do, I end up doing that. Who can save me?
जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। दैट इज द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का ऐसा थोड़ा इधर टाइम पास करने के लिए एक और रख दिया, ब्लेसेड सैक्रामेंट रख दिया, एक चर्च बना दिया, मूर्ति बना दिया। और यीशु क्रिस्त सिर्फ वहाँ पर वो मूर्तियों में और ये सैक्रामेंट में खाली नहीं है, वो हमारे दिल में बसते हैं। यीशु मेरी जान है, यीशु मेरा दिल है, मेरा प्राण है, और वो यीशु मेरे दिल में धड़कता है, मेरी आत्मा में धड़कता है, और मुझे उसका एहसास है। जब तक आपको यीशु का एहसास अपने अंतरात्मा में नहीं होगा तो आपका सब फेथ यूजलेस है। ब्रदर, आई हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन जीसस क्राइस्ट। If you have strong faith in Jesus Christ, you will never say you got faith in Jesus Christ. Your prayer will be, Lord, increase my faith. Lord, increase my faith. Lord, increase my faith. क्योंकि फेथ जितना बढ़ता है उतना मज़ा आता है, और उतना ही कम लगता है। जितना बढ़ता है उतना और मज़ा आता है, और ऐसा लगता है अभी भी कम है, कुछ और बढ़ा दे प्रभु। लॉर्ड इंक्रीज माय फेथ, ताकि वो मेरा जो समय तेरे साथ है वो इतना सुनहरा समय है। इट्स सच अ गोल्डन मोमेंट, एवरी मोमेंट विद यू। दैट इज जीसस क्राइस्ट। नौकरी दे दे, ये दे दे, एग्जाम दे दे, पैसा दे दे, घर दे दे, बच्चा दे दे, ये दे दे, ये सब आउटकम है। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड द राइचसनेस ऑफ गॉड, ऑल अदर थिंग्स शैल बी गिवन टू यू। दैट इज व्हाई वी नीड फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। That is why to receive the forgiveness of sins, we need to forgive. Mark chapter 11:25, if you forgive, you will be forgiven. If you don't forgive, your Father will also not forgive you. ये terms and conditions apply. क्षमा चाहिए तो पहले क्षमा कर। तब वो सिस्टर को जब मैंने बोला तो सिस्टर बोली, हाँ, अब आपने सही बताया कि प्रभु का वचन कहता है, और आपने जो इतना बड़ा भाषण दिया है उसका मतलब ये ही निकला है कि हाँ, मुझे क्षमा करना अनिवार्य है। इट इज एसेंशियल, अदरवाइज आई विल नॉट गेट फॉरगिवनेस ऑफ माय सिंस। इफ आई डोंट गेट फॉरगिवनेस ऑफ माय सिंस, आई विल बी इन द भवंडर ऑफ एक्शन रिएक्शन। कर्म भोग का चेन कौन तोड़ेगा? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चेन को तो तोड़ने को आया है। ये एक इधर थोड़ी खड़ा है ऐसे क्रॉस पे दिखाने के लिए और वे ऑफ द क्रॉस कर रहे हैं, कुछ समझता नहीं किसको भी। ऐसा नहीं चलेगा। वे ऑफ द क्रॉस कर रहे हो तो वो अंदर ही अंदर जाओ उसके साथ। मैं चल रहा हूँ प्रभु, मैं गिर रहा हूँ और उठ रहा हूँ, गिर रहा हूँ उठ रहा हूँ। मम्मा मरिया तूने मुझे दे दी। हालेलुया। रिफ्लेक्ट करो उसके ऊपर और महसूस करो उसका जो भी दर्द था, और क्यों दर्द उसने सहा। वो दर्द इसलिए सहा कि तेरे और मेरे पाप है, मेरे भाई मेरे बहन, तेरे और मेरे पाप है। और आज जब हम पाप करते हैं तो उसके जख्मों पे हम नमक छिड़कते हैं और दुखता है उसको। वो प्रभु था, वो इंसान था, लेकिन वो परमात्मा था। He was fully human, fully divine, as the word of God says, and the teaching of the church. तो आप कहाँ भाग रहे हो? फॉरगिवनेस करना आपके लिए एसेंशियल है, whether you like it or you don't like it. If you want blessings, if you want your prayers to be answered, if you want your sins to be forgiven, to forgiven you, you please forgive. I beg of you. And I want you to say only one word with me. Repeat after I say, only repeat. If you feel like, if you say it 3 times, that means you are agreeing with me. If you say it 1 time or 2 times, that means you don't agree with me. You want to follow your path of unforgiveness. Let us pray. Jesus, I forgive. Sorry. Jesus, I take a decision today to forgive all my enemies unconditionally. Jesus, I take a decision today to forgive all those who have hurt me unconditionally. Jesus, I take a decision today to forgive all those who have hurt me अनकंडीशनली। हालेलुया। जब हम ज़बान से ये बोलते हैं और हम इसको कबूल करते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। जब हम फॉरगिव करेंगे तो सारा हमको फॉरगिवनेस मिलेगा। हमारा जो नेक्स्ट सेशन इसका टॉपिक है सिन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, हमको समझ में आएगा। और जब आप जाओगे कन्फेशन के लिए, सैक्रामेंट ऑफ रेकन्सिलिएशन के लिए, वो तब आपको मान्य रखेगा, वो तब उसका मीनिंग होगा। नहीं तो हर रिट्रीट में जाके कन्फेशन करना ही है तो फैशन हो गया है।
फैशन नहीं करना इधर। अगर आप आए हो, दिस हैज टू बी योर टोटल एंड कंप्लीट फुल कन्फेशन। और वो कन्फेशन से आप निकलोगे जब, जैसे लॉन्ड्री में वो कपड़ा धुल के निकलता है, सफेद होके निकलता है, वैसे निकलना है आपको, ब्लेमिशलेस, स्पॉटलेस, एकदम। योर सिंस वर रेड एज क्रिम्सन बट दे वर washed white as snow. Have mercy on me, O Lord, have mercy on me. Blot out all my transgressions. Wash me white as snow. Praise the Lord. Praise the Lord. ये करता है यीशु। ये यीशु सिर्फ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ये लॉन्ड्री कहीं नहीं मिलेगी आपको, ऐसी वाली लॉन्ड्री कहीं नहीं मिलेगी। जितना पैसा दे दो, जितने पंखे लगा दो, बेंचा लगा दो, इसको पैसा दे दो, चैरिटी में दे दो, कुछ भी नहीं मिलेगा। 10 नदियों में डुबकी मार के आ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। Forgiveness of sins is with this Lamb of God because he had paid the price for your sins. उसने जो भरी है कीमत आपके लिए, रैंसम भरा है, उसने कीमत चुकाई है, जुर्माना चुकाया है आपका। इसीलिए आप बाहर आ सकते हो उस जेल से जो शैतान ने बनाई थी आपके पापों के लिए। उससे छुटकारा, जिसको हम लोग फैशन में बोलते हैं ब्लॉकेज, बॉन्डेज, फैशन हो गया है। लोग आजकल आते हैं, ब्रदर बॉन्डेज में हूँ, मेरा बेटा बॉन्डेज में है, ओ चुड़ैल, उसकी वाइफ, उसकी माँ, उसकी बहन। अरे मैं बोला ऐसे सब गाले हम लोग पंजाबी में बोल देते हैं। तू मत बोल, ऐसे मत बोल, गाली मत बोल, माँ बहन की गाली मत कर, तू कुछ नहीं होगा। किसी की माँ और बहन का बात नहीं है, किसी कोई चुड़ैल नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं है, तेरी बहू है वो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। काश मेरे पास टाइम होता ना तो मैं आपको एक गोल्डन फॉर्मूला बताता, जिससे कि हर सास है ना वो माँ बन जाती है, और जिससे हर जो बहू है ना वो बेटी बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गोल्डन फार्मूला है जीसस की टीचिंग के हिसाब से, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है। कभी ऑनलाइन में वो सेशन लूँगा तो आपको पता चलेगा। इफ़ यू जॉइन द LIM ग्रुप्स, इनको तो पता है। तो एक दिन वो सेशन याद दिलाना मुझे कि सास को माँ कैसे बनाना और बहू को बेटी कैसे बनाना, ये चमत्कार सिर्फ यीशु करता है। वो कैसे करने का है, वर्ड ऑफ गॉड के हिसाब से बताएंगे आपको, पूरा बना के टॉपिक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर सोचो कितना मज़ा आएगा। मेरी बीवी की है ना 3 बेटियां हैं ना, हमारी 3 बेटियां हैं। हम बोलते हैं तेरे को शुक्र है बेटा नहीं हुआ, अगर तेरे को बेटा हुआ होता ना तो तू अब जेल में होती, क्योंकि तू बहू के साथ ठीक से रह नहीं पाती। हम लोग तो तेरा अत्याचार सह रहे हैं, लेकिन बहू नहीं सहती, तेरे को जेल में ज़रूर डाल देती। तो अच्छा है तू जेल से बाहर है, तेरे को प्रभु ने लड़का दिया ही नहीं, लड़का दिया हो तो ज़रूर जेल में होती। साथ में मैं भी होता, क्योंकि पति को भी साथ में ले जाते हैं। अभी तो ऐसा रूल है ना, यहाँ पे बहू ने कंप्लेन किया, बुड़ू दोनों को अंदर, पता चला ये भी कैप्टन भी गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एनीवे, मजाक नहीं है। तो फॉरगिवनेस बहुत 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 ज़रूरी है। क्षमा करना सिंपल चीज़ है, देखो सिंपल चीज़ है, और आप नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाई आई सेड गोल्डन रूल। आपने लिख लिया ना भी बराबर। टेल द लॉर्ड, एड़ा बन के पेड़ा खाओ, एड़ा बन के पेड़ा खाओ यीशु के साथ। नहीं आता, फॉरगिवनेस नहीं होता, यीशु तू बता दे कैसे करना है, कर देगा। प्यार करना नहीं आता, अनकंडीशनली, निस्वार्थ प्रेम नहीं आता, पता है नहीं आता, कौन करेगा? हु विल सेव मी? जीसस क्राइस्ट। वो बोलेगा आई विल टीच यू, होली स्पिरिट विल से आई विल गिव यू द गिफ्ट ऑफ फॉरगिविंग लव। हालेलुया, फॉरगिविंग लव आ गया तो प्यार भी कर लिया, फॉरगिव भी कर लिया अनकंडीशनली। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, दिस इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, दिस इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। क्षमा करना एक फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट है। जब पवित्र आत्मा के आपके पास आएगी, अच्छा पवित्र आत्मा कैसे आएगी? फिर उसी भवंडर में आ गए हम लोग। प्रार्थना, प्रेयर लाइफ, सुबह में लिखाया मैंने, प्रेयर लाइफ बराबर रहेगी तो हमेशा अभिषेकित रहोगे। यू विल ऑलवेज रिमेन, द होली स्पिरिट विल रिमेन kindled in your life, the kindling of the Holy Spirit. Baptism, आपका जो बैप्टिज्म के टाइम पे होली स्पिरिट आता है, that Holy Spirit is different. But the baptism in the Holy Spirit, the rekindling of the Holy Spirit, that happens when you have a proper prayer life. Otherwise, हर बैप्टाइज बच्चे का अंदर, जो बड़ा भी होता है बैप्टाइज एक बार है तो उसका अंदर होली स्पिरिट है, बट दैट होली स्पिरिट इज डॉर्मेंट, सोई पड़ी है। अब उसको जागरूक करना है। फायर, पावर,
कैसे आएगा? फायर और पावर कहाँ से आएगा? होली स्पिरिट का, जब आप उसको जागरूक करोगे। जागरूक कैसे करोगे? गुड प्रेयर लाइफ, सैक्रामेंटल लाइफ। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वो रिट्रीट में जाऊंगा, उधर वो फादर प्रे करेंगे तो मैं वो मेरे को अनॉइंटिंग आने वाला है। अरे नहीं आएगा, अनॉइंटिंग आएगा वो सेशन में जरूर आएगा, क्योंकि लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स हो रहा है। अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट आया, घर में गए, 5-6 दिन सबको ज्ञान दिया, मैं होली स्पिरिट लेके आया रे, हाँ, और सबको ज्ञान दिया, सबको बताया, बीवी को बताया, पति को बताया कि हाँ देख देख ऐसा होली स्पिरिट, ज्ञान दिया सबको। रोज सुबह में चर्च में गया, 2-3-4 रोजरी भी किया। 7-8 दिन के बाद किधर गया रे तेरा अनॉइंटिंग? गया, फुस हो गया। कैसे फुस हो गया? क्योंकि तूने प्रार्थना का जीवन तो जिया नहीं ना। यू सेड यू केम अनॉइंटेड, retreat anointing will be there. You go from this retreat also you will be anointed, because laying on of hands is done, anointing with the holy oil is done. Anointing तो आएगा। इधर से जाने के बाद क्या होता है? कई लोग तो जाते हैं ना जब रिट्रीट से, काम धंधा बंद कर देते हैं। My Lord is my shepherd, there is nothing I shall want, so I am giving up my job. हाँ, मैडम लोग जाती है, यीशु सब देगा, मैं सुबह से चर्च में जाऊंगी, घर में खाना नहीं बनाऊंगी, 1 बजे आऊंगी, मैगी नूडल खिलाऊंगी, फिर चर्च में जाऊंगी, रात को आऊंगी, रास्ते में से वड़ा पाव लेके आऊंगी। खाना दाना बंद। वो मर्द है, वो रिट्रीट में जाके आया, काम धंधा बंद, नौकरी छोड़ दिया, धंधा बंद कर दिया, दुकान दे दिया चलाने को दूसरे को। दिस इज नॉट अनॉइंटिंग, दिस इज नॉट इफेक्ट ऑफ द रिट्रीट। और थोड़े दिन के बाद फिर रोना धोना, घर में झगड़ा, कलेश, घर में कलेश। अच्छा लोग गाली देता है, ये नूडल क्या, मैगी नूडल रोज रोज खाने का। जब हम लोग मांगता था मैगी नूडल देते नहीं थे, बोलते बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ। अभी खुद ही आके इतना बड़ा टोप बनाते मैगी नूडल का। खाओ खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, बहुत महंगा था ना, ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरे को ये कब क्या याद आता है, मेरी बेटी जब सेकंड वाली, अब तो शादीशुदा है, छोटी थी, तो हमेशा बोलती थी बीवी को, मेरे को पिज़्ज़ा नहीं भेजते स्कूल में बना के मम्मा। तो मम्मा ने क्या किया, एक दिन टिफ़िन में पिज़्ज़ा भेज दिया, दूसरे दिन फिर पिज़्ज़ा भेज दिया, तीसरे दिन फिर पिज़्ज़ा भेज दिया। मतलब खा जितने खाती है। शाम को आके बोलती है, मम्मा अभी पिज़्ज़ा बंद करो ना, नॉर्मल दाल रोटी भेजो ना। ये ऐसा है। तो रिट्रीट के बाद रिट्रीट के बुरे इफ़ेक्ट, ऐसे इसके ऊपर फिल्म बन सकती है। रिट्रीट के बुरे इफेक्ट भी होते हैं, हाँ, वो भी सेशन लूँगा एक बार प्रमिला जी, मैं याद दिला नहीं, रिट्रीट के बुरे इफेक्ट क्या होते हैं। ऐसे ऐसे लोग कार्य करते हैं, आफ्टर रिट्रीट दे डू सच वियर्ड थिंग्स, दे बिकम ओवर सुपर होली, सुपर होली। सो दिस इज वेरी डेंजरस, नो? सो लेट अस अंडरस्टैंड, forgiveness is very very essential. So you have made the list, you have taken a decision. Once you take a decision, no, and you pray, नाम लिखा, number 1, Lord I forgive unconditionally, I love unconditionally, tick tick, I bless unconditionally, I pray. Pray means क्या समझना, pray कैसा करते हैं लोगों के ऊपर, लोगों के लिए pray कैसा करते हैं। अभी हम लोग क्या pray, कोई एक बोलेगा ना, एक औरत को बोलेगा तो हस्बैंड के लिए pray कर, Lord, make my husband like this, like this, like this, like this. Whatever he is sitting with his feet on the sofa, tell him to put his feet down, make him good boy, tell him to be at least have a bath before 11 o'clock in the morning, otherwise till evening he is not having bath, roaming around in his shorts everywhere. Let him have a... This is what wives are praying. Let my son always pray, let my daughter come back at 8 o'clock, not go out again, become holy, holy, goody, goody girl. वो कभी सुनती भी नहीं है, वो प्रेयर आंसर भी नहीं होता है। सिंपल प्रेयर फादर ज़करियस ने सिखाया था, मैंने उसको पूरा अंदर डाल दिया सिस्टम के अंदर। सिंपल आपको प्रे फॉर अदर पीपल मीन्स प्रे दैट दे आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, देयर लाइव्स आर कंट्रोल्ड एंड गाइडेड बाय द होली स्पिरिट। दिस इज द मोस्ट सिंपल होली स्पिरिट प्रेयर यू कैन डू। प्रे फॉर द पीपल, प्रे फॉर दिस। वी डू नॉट नो हाउ टू प्रे, बट द स्पिरिट हेल्प्स अस इन आवर वीकनेस टू इंटरसीड फॉर पीपल, टू pray for other people. What to pray? Holy Spirit is saying only one thing. If I am there, everything will be answered.
हम लोग अपना ज्ञान देते हैं, बड़ा लिस्ट बनाते हैं, उसके लिए क्या प्रार्थना करना? वेट, आई विल सिट डाउन एंड राइट व्हाट आर ऑल द बैड क्वालिटीज ऑफ माय हस्बैंड। अरे हस्बैंड का बैड क्वालिटीज तो पूरा एनसाइक्लोपीडिया भर जाएगा, है कि नहीं? और बीवी का, और गुड पॉइंट्स बोलेगा तो बाजू वाले का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैरिड कपल में अनदर गुड पॉइंट बोलेगा तो मेरी माँ ऐसा करती थी, तेरे में इतना अक्ल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, खलास, ये मैरिज कभी चलेगा नहीं। इफ़ यू एडमायर एंड अप्रिशिएट टू मच ऑफ योर मदर, then the marriage will have problems. So be very subtle, diplomatic. That Jesus will teach you how to be diplomatic and subtle. Jesus teaches everything. He teaches you how to live life. दोनों तरफ बराबर रख के, तराजू बराबर रखने का, बैलेंस। बीवी को कैसा संभालने का, पति को कैसा, पत्नी को कैसा संभालने का, ये दोनों जिसने सीख लिया उसकी तो हो गई बल्ले बल्ले। हाँ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अनफॉरगिवनेस एंड रिजेंटमेंट, सेंट अगस्टिन कहते हैं रिजेंटमेंट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू डाई। जहर मैं पीता हूँ, पूछता हूँ ये मर जाएंगी। आई एम ड्रिंकिंग पॉइजन, आई एम हेटिंग द अदर पर्सन, दैट पर्सन विल डाई बिकॉज आई एम ड्रिंकिंग द पॉइजन। इट डजंट वर्क दैट वे। दैट इज व्हाट इज अनफॉरगिवनेस। when you don't forgive, you are drinking poison, you are expecting other poison, that is hurting you, that poison is going in you. Forgiveness liberates the soul. क्षमा करने से आपकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। देखो फॉरगिवनेस किसको किसको करना है, कई लोगों को वो भी नहीं समझता है। कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना है, लेट गो करना है और डिसएसोशिएट करना है। तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दैट इज द सम टोटल ऑफ फॉरगिवनेस। एक टॉपिक है फॉरगिवनेस, वो नहीं करोगे ना तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स और प्रेयर का आंसर नहीं आएगा। वन इज फॉरगिवनेस मिलेगी आपको, वो तो ठीक है, व्हेन यू फॉरगिव पीपल यू विल गेट, लेकिन आपको जो आंसर चाहिए, पूरी तरह से ब्लॉक्स बॉन्डेजेस निकालने हैं, तो कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ करने के लिए यीशु ने बहुत सिंपल बना दिया। तीन चीज़ करो। नंबर वन, आई फॉरगिव, जो मैंने आपको बताया सारा फॉरगिव करके उसका लिस्ट बना के फॉरगिव। दूसरा, ऐसी ऐसी घटनाओं को लिखो जो आपके साथ घटी थी लाइफ में। लाइक यू वी रिमेंबर सर्टन थिंग्स एंड जिसको हम भूल नहीं पाते हैं। अरे मेरा बाप का डेथ हो गया था अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस में, और ऐसा इवेंट हुआ था, मेरा एक बॉयफ्रेंड था उसने मेरे को डिच कर दिया, बैड इवेंट। जब मैं दूसरा एक फॉरगिवनेस में लेता हूँ, व्हेन अ यंग गर्ल 12 and 13 years old, शी इज वॉकिंग इनटू स्कूल एंड द होल स्कूल इज लाफिंग एट हर. Why the school is laughing? She is looking, why they are laughing? Till one teacher comes and takes her to the washroom. You have had your first periods. और उसका गुस्सा, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरी कजिन ने, मेरी दादी ने मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं सिखाया। उसके बाद उसके ऊपर इफेक्ट क्या है वो कभी भूल नहीं पाई। उसको इतना शेम हुआ, बॉडी शेम हुआ, और उसको इतना शेम हुआ, उसके बाद से उसके पीरियड इरेगुलर हो गए, उसको मेजर प्रॉब्लम आ गया इन हर पीरियड्स। उसकी शादी हो गई, उसको बच्चा नहीं हो पा रहा था, बच्चा कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उसके पीरियड्स इरेगुलर है। वो हेट करती है सबको, वो अपने पति तक को हेट करती है। शादी तो कर लिया प्रेशर में आके सोसाइटी के, लेकिन दिस इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द वुंड्स विच दैट गर्ल हैज रिसीव्ड। सो ऐसी कई घटनाएं हैं, उन घटनाओं को भी क्षमा करना पड़ेगा। सिर्फ उस all the teachers, all the principal, all the staff who laughed at me, Lord, I forgive them. No, I have to forgive this incident. Let go of this incident. And bring an incident of joy when I see, yes, Lord, now I am completely healed of all my irregular periods and all my other kind of problems. Now I am living a beautiful life with my husband. Now I have conceived. The Holy Spirit has come upon me and the power of the Most High has overshadowed me and I am with child. The first joyful mystery, Annunciation, golden formula for conception. It's coming, Holy Spirit has come upon me. So all the other things are on. When Holy Spirit comes, washes, cleans everything, laundry chalu. सब साफ सफाई कर देती है. Now you conceive. How will I conceive? I am not yet married, I am a virgin. And what angel Gabriel said?
Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you and you shall be with child. For Elizabeth, your cousin, in her old age has conceived. 6 months, already pregnant. Oh, with God, nothing is impossible. This is the power. मेरी बेटी जो 5 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, मैंने फादर से ये टेक्निक जब सीखा 2000 when was it? 15 or 16. I prayed for my daughter. She would not want to pray. I prayed for her. I prayed. I said, you tell Lord, give me this date up to before Christmas. Make my daughter pregnant. And I prayed. Every day I meditated, saw the child, saw the pregnancy. Every stage of the pregnancy I saw. Within 2 months she was pregnant. Praise the Lord. Today my granddaughter is 7.5 years old. Praise the Lord. Hallelujah. Wonderful delivery. Wonderful pregnancy. Same exactly as I visualized. Test is positive, gynec report is positive, morning sickness is happening, 3 months shape is changing, baby shower after 7 months, exactly same way. Delivery, wonderful child, calling me out, नानू 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 नानू. आप कितना विजुअलाइज कर सकते हो? इतना टीवी सीरियल देखते हो, रील देखते हो ना, ये क्या विजुअलाइज नहीं कर सकते खुद के लिए? करो ना. प्रेज द लॉर्ड. आप विजुअलाइज करो, आई एम फ्लाइंग. हाँ, फ्लाइंग. ड्रेस पहनो, पता करो, आई एम फ्लाइंग, एंड यू विल फ्लाई. गाड़ी में बैठ के बोलेगा आई विल फ्लाई, कैसे चलेगा? एरोप्लेन में बैठना है दिमाग से. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एंड गॉड विल आंसर ऑल योर प्रेयर्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो दैट इज लेटिंग गो दैट सर्कमस्टेंसेस. जो ऐसे ऐसे घटनाएं हुई थी उनको लेट गो करो. तीसरा चीज ये डिसएसोशिएट. कोई नेगेटिव आदमी है, अभी नेगेटिव अपने पति और पत्नी से दूर नहीं रह सकते आप. ये मत बोलो. मैं बोला डिसोसिएशन फ्रॉम नेगेटिव पीपल. पहले तो बोला मैं बीवी को छोड़ देता हूँ. ब्रदर आपने बोला इसलिए. अरे बाबा ऐसा नहीं. पति पत्नी माँ बाप को बच्चों को नहीं छोड़ सकते आप. नेगेटिव है, यू टू प्रे फॉर देम. गॉड विल आंसर योर प्रेयर. बिकॉज हस्बैंड लोग भी कभी तैयार होकर आए थे. अरे बोला आप ब्रदर आपने बोला था डिसोसिएट फ्रॉम. आई वाइफ को मैं देखेगा भी नहीं, हकल देगा घर से. अरे हकल नको रे बाबा, ऐसा नहीं बोला था यीशु. हाँ, तो बोला हकल देगा सीधा. तो प्लस नेगेटिव लोग, कैसे नेगेटिव लोग? कौन? आजू बाजू वाले जो कीड़ा काड़ी करते हैं या नेगेटिव बोल के जाते हैं. अभी एक औरत आई, उसने बोला कि मेरा बेटे को ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ तो भी मानसिक प्रॉब्लम है. नहीं, उसको प्रॉब्लम है, सॉरी, बेटे को अलग प्रॉब्लम. मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरे को दवा दिया. वो बाजू वाली आंटी ने मेरे को बोला हाँ मेरे भाई को भी ऐसा था, वो तो जन्म भर दवा खाना ही पड़ेगा तेरे को, और वो चीज़ को भूल ही नहीं रही. बोल कर मेरे को जन्म भर मिला. यीशु तेरे को चंगाई देंगे. हाँ, यीशु तो चंगाई देंगे, लेकिन दवा तो जिंदगी भर खाना पड़ेगा ना. वो छोड़ ही नहीं रहे वो आंटी को. तो ऐसे लोगों से दूर रहो, नेगेटिव पीपल से दूर रहो. नेगेटिव ओपिनियन वाले लोग जो हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको करता है. स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिव इवेंट्स, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस. स्टे अवे. But why the Lord is saying you have to love everybody and care? You have to love them, yes. आपका स्पिरिचुअल लेवल जब बढ़ेगा ना, आप अभी वीक स्पिरिचुअल लेवल रहेगा ना यार, मीडियोकर रहेगा, तो आप क्या होता है कि आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस जल्दी लगता है. आपका स्पिरिचुअल लेवल थोड़ा बढ़ेगा तो वो जो नेगेटिव आदमी आपके पास आएगा ना, उसको आप पॉजिटिव बना दोगे, वो बिलीवर बन जाएगा, वो यीशु में विश्वास करना चालो. बट उस लेवल पे आने तक तो आपको डिसोसिएट करना पड़ेगा नेगेटिव लोगों से. नहीं तो डॉक्टर ने ये बोल दिया खलास, उसने ये बोल दिया खलास, तेरा पति ऐसा है, तेरा पति को मैं देखा था उसके गर्लफ्रेंड के साथ. ये सब सुनते सुनते बैठोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है. ट्रस्ट इन द लॉर्ड. मेरा पति मेरा है, आई लव माई हस्बैंड लव्स मी. बस यू प्रे दिस, your husband will not go anywhere and your wife will also not go anywhere. You pray like this. Don't listen to, disassociate from all the negative people who talk, because they will poison your mind. They are agents of Satan. Satan is using them. They are using them. Satan is using them. All giving you all this wrong nonsense. Trust is the first and most important thing in a marriage. So you have to forgive unconditionally and disassociate. नेगेटिव लोगों, जब आपकी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ जाएगी ना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है. अभी हम लोग कितने लोग को मिलता हूँ मैं, मैनी पीपल आई मीट, क्या क्या नेगेटिव लोग रहते हैं. अगर मैं भाग जाऊँगा तो उनका साल्वेशन कहाँ से होगा? जो प्रभु ने कार्य के लिए भेजा है तो आई हैव टू सिट
प्रे, वो नेगेटिव 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 करते करते उसको पॉजिटिव पॉजिटिव में कैसा लेके आने का है, प्रार्थना करके उसके लिए। ऐसा नहीं कि मैं खड़ा हुआ तो तू पॉजिटिव हो गया, नहीं। अभी जब सपोज मेरी बहन है प्रमिला कुछ नेगेटिव लेके आती है, ये नेगेटिव है, तो मैं उससे क्या दूर भाग जाऊंगा? नहीं भागूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव कैसा बनाना है। नाउ आई हैव टू स्टार्ट प्रेइंग फॉर हर। एक दिन तो बात करूंगा प्यार से, फिर जाऊंगा घर पे रोजरी में, ब्लेसेड सैक्रमेंट में, होली मास में लिफ्ट अप करूंगा। प्रमिला बी ब्लेस्ड, प्रमिला टू बिकम पॉजिटिव, प्रमिला टू बिकम पॉजिटिव, फिल हर विद फेथ लॉर्ड, फिल हर विद फेथ, ब्लेस हर, हील हर। थोड़े दिन के बाद प्रमिला इज ब्लेस्ड। So the positivity has to come. That effort will have to be taken. Who will give that effort? Holy Spirit. Holy Spirit will tell me, teach me how to pray for Pramila. Otherwise, I don't know how to pray. I will think ये negative है, भगा इसको, दूर कर। दूर नहीं करना है ना। You have to love all your brothers and sisters, and you have to be a cause for their salvation. That will come when the Lord calls you for that task. But till that time, you have to stay from negative people. Otherwise, those negative people will make your life hell. डिसएसोशिएट, लेट गो, फॉरगिव, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बाकी वो राग, ब्लॉकेज है, छोड़ो। नेगेटिविटी, मेरा एंसेस्टर ने जो भी पाप किया वहीं पर बोल दो। इन द नेम ऑफ जीसस आई कट एंड ब्रेक all the negative forces of blockage, bondage or any kind of evil effect of the sin of my ancestors from my life and of the life of all my family members. I cut and break and bind it and put it at the feet of Jesus. Kalas! In the name of Jesus is wonderful. If I lay hands on your head and say that in the name of Jesus be healed, you are healed. Now, Father, I thank you that whenever I pray in the name of Jesus, you answer my prayer. But क्यों healing नहीं हो रहा? आपने accept नहीं किया, इसलिए you have to accept it. You have to remove the unforgiveness. You have to remove the sin from your life. You have to become disassociated. Then you have to believe. Your faith will give you the answer. My prayer, it is answered. When I pray, Heavenly Father, whatever I ask in the name of Jesus, done. That is done. Bread is multiplied. Lazarus is raised. But why it is not happening? Somewhere there may be a lack of faith on my part. Somewhere there will be a lack of faith on the other person's part, or not willing to change and come to the path of Jesus. Some people having inherent some sin which they don't want to give up. Some people having inherent unforgiveness. They cannot forgive. बोलते हैं कि I will forgive, I am forgiving, लेकिन दिमाग में चलता रहता है। फॉरगिवनेस नहीं होता है तो पाप नहीं जाता है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो बॉन्डेज बन जाता है, वो ब्लॉकेज बन जाता है, वो ब्लेसिंग आती नहीं है, रुकावट आ जाती है। ब्लेसिंग आने के लिए, चंगाई आने के लिए इन एनी एरिया ऑफ लाइफ रुकावट आती है। बाकी यीशु के नाम पे आप कुछ भी मांगो, मिलना ही मिलना है। अगर मैं मांगता हूँ यीशु के नाम पे आपके लिए, तो आपको मिलना ही मिलना 100%। वो पावर ऑफ गॉड है, दैट इज, यू कैन नॉट चेंज दैट, बट समवेयर यू हैव टू एक्सेप्ट इट ऑल्सो। एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं मिलेगा, फिर मैनिफेस्ट नहीं होगा। जिस दिन तक आप अभी आप 1 साल के बाद उसको बिलीव करोगे तो 1 साल के बाद मैनिफेस्ट। प्रेयर विल नेवर गो अनआंसर्ड, प्रेयर विल गो आंसर्ड इफ यू बिलीव आफ्टर 1 year and come to the path of repentance and forgiveness and everything. After 1 year you will get the answer of prayer. Prayer is in the atmosphere, it will never go. Once जबान से निकल गया, यीशु के नाम पे प्रार्थना हो गई, दिल से, आत्मा से, उसका इफेक्ट होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो 3 things रिमेंबर: forgiving people, forgiving and letting go people, disassociating from circumstances, events, past, whatever हुआ। आप इसका लिस्ट बनाओ, 1-2 दिन लो, लिस्ट पूरा डिटेल बनाओ और इसके लिए प्रार्थना करो। यीशु को बोलो जो मैंने आपको बताया, help me to forgive, let go, help me to love unconditionally, pray that they are filled with the Holy Spirit and I will do good to them. One wife said, if I do good to my husband, what will happen? He will feel awkward. So what? You do good. Then she started doing good. First husband was very shocked. ये क्या हो गया? She is supposed to be filled with Holy Spirit. How she is filled with evil spirit? That she is acting like this. Maybe this is good evil spirit. Good evil spirit, ऐसा सोचता है। बाद में उसको पता चला नहीं, यीशु ने इसको एक्चुअली चेंज किया। Now their marriage became hot and hot again. Because she started becoming good. She started become very sweet with the husband. Marriage was not working out, but she decided, I want to save my marriage. So I said, you now forgive him first, love him first, bless him, pray that he is filled with the Holy Spirit, and now do good to him. Good to him means give him some good things to eat which he likes.
Be very sweet and smiling towards him. Dress yourself properly. Go to a parlor. Do up yourself nicely. Come in your best attire. हस्बैंड को शौक, ये क्या हो गया इसको, ये तो हमेशा गंदा कपड़े में ही रहती है, तो ये उसका इमेज खराब हो गया है. मेरी सुंदर बीवी आज कैसा घूमती है, अभी उसने सडनली चेंज देखा, उसको भी लगा यार ये तो पड़ोसन से भी सुंदर है. हाँ, ये तो पड़ोसन से भी सुंदर है, तो अब इसके पीछे भागता हूँ. चल छोड़ना, घर की मुर्गी की दाल बराबर, ऐसा क्यों मैंने किया. हाँ, अभी इसके पीछे लगता हूँ. मैरिज हिट हो गया वापस. हेलो, क्यों? यीशु का पूरा फॉलो किया, गुड हो गई. शी बिकेम गुड कैथलिक वाइफ. मैंने उसको भेजा, एक हमारा ग्रुप में डाला है मैंने PDF, क्वालिटीज ऑफ गुड कैथलिक वाइफ, क्वालिटीज ऑफ गुड कैथलिक हस्बैंड. मैंने पूरा एक लिस्ट बनाया और मैंने डाला. उसने वो उसको दिया तो उसने फॉलो किया. गुड कैथलिक वाइफ कैसी होनी चाहिए, image of Mary and all good things from the Bible, all the different scriptural, how from the Bible and teaching of the church scripturally good wife कैसी होनी. उसने अपने आप को चेंज किया. जब वो गुड वाइफ बन गई तो वो गुड हस्बैंड अपने आप बन गया ऑटोमेटिक. एक चीज़ मैं बताता हूँ हमेशा रिट्रीट में, आपको भी बताता हूँ. औरतें आती है ना, वो बोलते हैं मेरा हस्बैंड के लिए मैं प्रे करती हूँ अच्छा आदमी बन जाए, सेंट जोसेफ बन जाए. और हस्बैंड लोग आते हैं बोलते हैं मेरी वाइफ का मैं प्रे करता हूँ वो मदर मेरी बन जाए. बोला सी योर वट एवर इज राइट, बट इफ यू वॉन्ट योर वाइफ टू बिकम लाइक मदर मेरी, यू हैव टू बिकम सेंट जोसेफ. नो, अदरवाइज मदर मेरी विल गो इनटू एडल्ट्री. सो यू बिकम सेंट जोसेफ फर्स्ट, and for your husband to become Saint Joseph, you become Mother Mary first. Then automatically he will be transformed. Otherwise you want to be remain wicked woman and you want husband to be Saint Joseph. ऐसा कैसा चलेगा? तुम पहले मदर मेरी बनो ना, तुमको नहीं बनना है. तुम मदर मेरी बन जाओ, अपने आप सेंट जोसेफ बन जाएगा. हालेलुया. लॉजिक करेक्ट है ना, गलत नहीं है ना. हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं, मेरा हस्बैंड को सेंट जोसेफ बना दो, गुड नाइस प्रोटेक्टिव वेरी गुड बॉय, मैं बैड गर्ल बन के रहेगी. क्यों रहे? ऐसा नहीं चलेगा. इफ यू वांट अदर पर्सन टू बी गुड, यू ऑल्सो बी गुड. यू बिकम मदर मेरी देन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. नहीं तो मैं इधर ही रहेगा रात भर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. व्हाट इज सिन? What is sin? Now forgiveness is done. Now we are coming to sin and confession. So now you have to take the next step. Sin is a offense against reason, truth and right conscience. It is failure in the genuine love for God and neighbor caused by a perverse attachment to certain goods or certain other things. When our love for other things is more, we are having a love is not there. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul and strength. First commandment. Second commandment of Jesus, love your neighbor as yourself. But we are attached to something else and our love it decreases, then we fall into sin. Thank you Lord. Praise you Lord. Thank you Jesus. Praise you Lord. It wounds the nature of man and injures the human solidarity. It is defined as an utterance, a deed or a desire contrary to the eternal law. This is not my word, this is Catechism of the Catholic Church 1849. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Praise you Lord. Pope Francis says that one of the evils of our day is the loss of sense of sin. लोग भूल गए कि पाप क्या है. मैं अपनी खुद की स्टोरी बताता हूँ. मैं तो अपने आप को बड़ा शुद्ध अच्छा इंसान समझता था. जब मेरे पास यीशु नहीं थे, मैं पाप की ज़िंदगी थी, तो मैं अपने तो मैं अच्छा आदमी हूँ यार, मैंने किसका बुरा कुछ किया ही नहीं. लेकिन मैं बड़ा पापी था. मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें पाप है. वो तो किसी ने सिखाया ही नहीं था. तो कैटेकिज्म नहीं किया था ना हमने. हमको कौन सिखाएगा? ना माँ बाप कैथलिक थे जो सिखाएंगे. चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब करते रहो, चलते रहो, जैसी दुनिया चलती है वैसे ही चलना है. इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन नॉलेज नहीं थी, आंखें खुली नहीं थी, ज्ञान नहीं था, सद्बुद्धि आई नहीं थी. सद्बुद्धि सिर्फ बाल सफ़ेद करने से नहीं आती है मेरे भाई. वो मेरे भी है, मैं काले करके आता हूँ. सद्बुद्धि बाल सफ़ेद करने से नहीं आती है. सद्बुद्धि आती है प्रभु के साथ प्रेम करने में. प्रेज यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. व्हेन यू लव द लॉर्ड यू विल रिसीव विजडम. विजडम इज द बिगिनिंग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
So sin is the turning away from God by breaking His commandments. Everyone who commits sin is guilty of lawlessness. Sin is lawlessness. जब आप प्रभु का जो कमांडमेंट्स हैं वो फॉलो नहीं करते हो तो आप पाप में पड़ते हो. थैंक यू जीसस. मैनी पीपल सिन बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ द लॉ ऑफ गॉड, लाइक आई वॉज अनअवेयर ऑफ द लॉ ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. ये दो चीज़ का जब अनअवेयर रहेगा तो आदमी पाप में जाता है और वो सोचता है मैं बहुत अच्छा आदमी. ये दूसरी गलत फहमी है. लॉस ऑफ सिन, लॉस ऑफ सेंस ऑफ सिन, हम इसको पाप समझते ही नहीं. अभी एक आदमी है जो टीवी का सीरियल देखता रहता है. एक औरत है और आदमी है. औरत है टीवी सीरियल देखती है, वो बोलती है क्या प्रॉब्लम है. वो औरत का टीवी सीरियल में आती है, उसका पता नहीं कितना पति है, कितना बच्चा है, कौन सा पति के साथ कौन सा है मालूम नहीं, लेकिन रात को पूरा ज्वेलरी पहन के सोती है, अच्छा अच्छा साड़ी पहनती है, वो बनारसी और वो कांचीपुरम, दूसरा वो भी पैठनी पहन के सोती है रात को. अब मेरे को हमने किया तो क्या बुरा किया, तुमने किया तो अच्छा, हमने किया तो पाप, ऐसा कैसा चलेगा. तो हम भी अच्छे, हमने क्या बुरा किया किसका. वो तो इतना बुरा काम कर रहे, कितने पति कितनी पत्नियाँ हैं, इसको मालूम नहीं कौन किसका है, लेकिन तो भी उनका लाइफ अच्छा है. तो हमने क्या पाप किया, हम तो कुछ करते ही नहीं ऐसा. हम तो अपना वही पति के पास पढ़े, वही पति वही पत्नी के पास पढ़े, ऐसा ही बोलते हैं. तो ब्रदर व्हाई यू आर टेलिंग अस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Matthew chapter 22:29 says, you are wrong because you know neither the scriptures nor the power of God. Yes, not knowing the scriptures, not knowing the power of God. जब स्क्रिप्चर समझ में आया, पावर ऑफ गॉड समझ में आया, क्षमा समझ में आई, यीशु समझ में आया, लैम्ब ऑफ गॉड, तब पाप से दूर होने की अंदर ताकत आई कि हाँ अब ये पाप है भाई. What do we say every mass? In my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. That is our sin. Nothing else. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Sin happens when you deny the first place to God and His worship. You have to worship, keep God above everything else. If I tell my wife, you are better than my God Jesus Christ, that is my big sin, capital sin. I break the first commandment. I cannot do that just to make my baby happy. No, I cannot. God showed me the way how to get out of it. She also understood. She never asked me that question again. She understood. Because power of God जब चलता है ना, वो सब चीज़ को ठीक कर देता है. उसने उसके दिमाग को ठीक कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में ये ठीक नहीं चल रहा था कि मैं पति को ऐसे टेस्ट में डालूँ. बाद में उसको समझ में आया, क्योंकि पावर ऑफ गॉड आया वहाँ पे. मैंने अपना दिमाग से शान पट्टी नहीं किया. मैं शान पट्टी करता था तो फ्लॉप हो जाता था. ये फ्लॉप नहीं हुआ क्योंकि स्पिरिट का अनॉइंटिंग था. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया. सेकेंड वे यू सिन, फर्स्ट इज नॉट गिविंग द बेस्ट टू द लॉर्ड and His worship. Second is the deeds of your flesh. Galatians chapter 5 verses 19 to 21. You can read. Flesh, works of the flesh are obvious: fornication, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, anger, quarrel, dissension, faction, envy, drunkenness, carousing, and things like this. I am warning you, as I warned you before, those who do such things will not inherit in the kingdom of God. Hallelujah. Or you will not go to the kingdom of God if you are doing all this nonsense. क्लियर है बाइबल में. गलेशियन चैप्टर 5 19 to 21 पढ़ लो. अगर आप उसमें से एक भी कर रहे हो तो छोड़ दो आज के आज, बिकॉज यू विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ गॉड. रिट्रीट में आने के बाद भी. प्रेज द लॉर्ड. दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लीव इट. कन्फेस योर सिन टुडे इन द कन्फेशनल. व्हेन यू गो टू द फादर एंड टेक एब्सोल्यूशन, टेक अ डिसीजन, आई विल नॉट सिन, लॉर्ड हेल्प मी. इधर तो सिंपल है. जो नहीं होता है, लॉर्ड हेल्प मी, लॉर्ड विल हेल्प यू. प्रेज द लॉर्ड. डिजायर्स दैट आर ईवल, डिजायर जो हमारे थॉट्स भी रहते हैं ना गलत, दो डिजायर ईवल और ऑल्सो अ सिन. वन इज टेम्प्टेड, जेम्स चैप्टर 1 14-15 says, but one is tempted by one own desire, being lured and enticed by it. When that desire has conceived, it gives birth to sin, and that sin, when it is fully grown, gives birth to death. Hallelujah. So विचारों पे, हाँ, जेम्स चैप्टर 1 14-15. James chapter 1 verses 14-15. Okay, so desires that are evil. अभी कोई लोग क्या सोचते हैं,
थोड़ा गलत सोच लिया तो क्या फर्क पड़ता है रे, क्या गलत सोचा। एक लड़की आ रही है चर्च में, इतना मस्त दिख रही है, इतना अच्छे कपड़े पहन के आ रही है, उसको देखूं भी नहीं, मैं कुछ किया थोड़ी बुरा रे, मैं कुछ किया बुरा, उससे बात किया नहीं किया, एक नज़र डाल दिया, नेत्र सुख प्राप्त कर लिया, तो क्या होगा भैया, ऐसा क्या पाप कर लिए हम हैं परमिला जी, ऐसा क्या पाप हो गया। हम थोड़ा नेत्र सुख ले लिए, उनको तकलीफ हो गई हमसे कि भैया पाप कर दिए हैं, क्या पाप नहीं किए हम, कहाँ पाप किए। तो ऐसे सोचते हैं, दुनियादारी ऐसे सोचती है, लेकिन वो पाप है, डिजायर दैट इज इवल। When I have used to conduct one session in our group, where a special group was formed. It is called the mental diet. Mental diet means how you avoid negative thoughts. When negative thought comes to everybody, comes to the priest also, bishop also, pope also. Now negative thought when it comes, what do you have to do? If you entertain it, आजा थोड़ी देर बैठ, फिर चले जा, वो नेगेटिव थॉट तुमको छोड़ेगा नहीं, ऐसा पकड़ के रखेगा। और यू ड्वेल ऑन इट, चल ना थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, नहीं नेगेटिव थॉट आया तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, गो 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 गो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, गेट लॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोगों ने फायर प्लेस देखा है ना, और जिधर आग जलती है ठंडी में, उधर से कभी कभी ऐसी चिंगारी आती है, कपड़े के ऊपर गिरती है, उसको ऐसा देखते रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला, छटक देना मांगता है इमीडिएटली, छटक दिया तो कुछ नहीं होगा, छोड़ दिया तो छेद कर देगी, ऐसा नेगेटिव थॉट है। उसको एंटरटेन किया, बोला आजा चाय पी फिर जाना, वो कभी नहीं जाएगी। या उसके ऊपर ड्वेल किया, थोड़ा सोच लेता हूँ रे, एक बार देख लेता हूँ, हाँ बड़ी सुंदर लड़की है, वाह वाह, लॉर्ड ऑल ग्लोरी टू यू, यू हैव मेड सच अ ब्यूटिफुल क्रिएशन, दिस गर्ल इज सो ब्यूटिफुल। Actually you are looking at a woman with lust in your eyes, you have committed mortal sin already, you have committed adultery, you do not realize it because you are not aware of the word of God and the power of God, that is what I said. So the evil desire has to go, शुद्धिकरण होना है, शुद्धिकरण ऑटोमेटिक नहीं होगा, प्रार्थना का जीवन जरूरी है, होली स्पिरिट से मदद जरूरी है, माँ मरियम का इंटरसेशन जरूरी है, मम्मा मरिया, एवरी टाइम आई प्रे द फोर्थ ग्लोरियस मिस्ट्री, assumption of Our Lady, Mama Maria, make me pure in heart, mind, body and soul, thoughts, words and actions. Mama Maria, pray for me. अपने से नहीं होता है, हम लोग दुष्ट हैं, पापी हैं, sin is in us, we are born of original sin का concupiscence is there in us, वो जाता नहीं है जल्दी। हर पल प्रार्थना में अभिषेकित रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रार्थना का जीवन गुड नहीं है ना, इफ योर प्रेयर लाइफ इज नॉट गुड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, वन इज योर प्रेयर विल नॉट बी आंसर्ड, सेकेंडली यू विल नेवर कम क्लोज टू गॉड। इफ यू वॉन्ट टू कम क्लोज टू गॉड, योर प्रेयर लाइफ हैज टू टेक फर्स्ट इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ, बाकी सब बाजू में। प्रेयर लाइफ अच्छा रहेगा, काम भी अच्छा होगा, नौकरी भी अच्छा होगी, परिवार भी अच्छा चलेगा, मदर इन लॉ भी अच्छी रहेगी, सब अच्छा रहेगा। जब भी मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि मेरी मदर इन लॉ है, मैं मास में कैसे जाऊं, उसको मैं क्या बोला, यू राइट डाउन एंड से आई वॉन्ट टू गो फॉर होली मास। कुछ दिन के बाद, एंड प्रे फॉर योर हस्बैंड एंड योर मदर इन लॉ एंड योर चिल्ड्रन, दे आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आफ्टर सम डेज मदर इन लॉ विल कम टू यू एंड टेल यू, बेटा लेट अस गो फॉर होली मास टुडे। क्या हुआ, इसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तेरी प्रार्थनाओं की वजह से हुआ, क्योंकि ने तुझे उसको साथ किटकिट मचमच अपने दिमाग से निकाल दिया था। इन योर थॉट्स एंड इन योर वर्ड्स एंड इन योर एक्शन, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू फेल टू डू, यू हैड स्टॉप, यू आर ब्लेसिंग योर मदर इन लॉ, माय मदर इन लॉ इज लाइक माय मदर, माय मदर इन लॉ माय ब्रदर, एंड आई प्रे एंड आई प्रे एंड आई प्रे, लॉर्ड आई वांट होली मास, लॉर्ड आई वांट होली मास। साइड से उधर भी इस्तीफा डाल रहे हैं, उसके पास अर्जी डाल रहे हैं, इस्तीफा नहीं अर्जी डाल रहे हैं यीशु के पास, तो वो भी सुन रहा है। उसने क्या किया, मदर इन लॉ का हार्ट चेंज कर दिया। अभी मदर इन लॉ का हार्ट चेंज हो गया, उसको मास में जाने का है, तो उसका बेटा कैसा पीछे हटेगा? वो बोला मैं गाड़ी निकालता हूँ रे, गाड़ी में लेके जाऊंगा तुमको, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock मास, उधर से आने के बाद दोनों माँ बेटी, माँ और बहू बैठ के टिफिन बनाना बच्चा लोग का और मेरा, मैं काम पे जाता हूँ उसका पहला कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, मैं भी आता हूँ होली मास में। तीनों आने लगे। God has saved 2 other people by your holy desire of desiring for holy mass. तुमने मास अपने लिए मांगी, सास भी चेंज हो गई,
सास भी माँ बन गई, हालेलुया। पति भी एकदम चैंपियन बनने लगा। कितना देखो फर्क पड़ता है। आप मांगो होली मास, मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस। 1 John chapter 2 verses 16 and 17, very famous 3 temptations of Jesus Christ. For all that is in the world, the desire of the flesh, the desire of the eyes, बुरी नज़र, the pride in riches, मेरे पास बहुत है, पैसा, ताकत, मेरी, come not from the Father but from the world. And the world and its desires are passing away, but those who do the will of God will live forever. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Saint Paul warns us that our lust leads us to sins, and that unless we put on the new man created in the likeness of God, that is the new Adam, Jesus Christ, we will become slaves to sin. We will become slaves to sin. So your thoughts and your planning also has to be changed. Depraved, negative, gande thoughts, enmity, scheming thoughts, negative thoughts have to be changed. Sometimes you say मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन ये दिमाग में तो किया ना, in my thoughts and in my words and what I have done and what I have failed to do. करना है. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Praise you Lord. अच्छे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. It is a serious sin not to forsake fully the sin of lust and to enjoy them in one's heart. अभी 85 year आदमी, he is not able to do anything, but desire, lust is in his heart. That is why he is going to pornography. He is not able to do anything. His physical life ended at about 70 years. Finished. Wife is saying, what to do with this fellow? Anyway, he cannot do anything. Now he has gone into this, why, depraved mind, entering into sin, and that sin is a sin. Well, that is adultery, that is fornication, that is major sin, mortal sin. A man of 80, 85 years old into pornography is major sin. Who will protect him? Now how to tell him, brother, what you are doing is the age of your grandfather? What to tell him? We are shy even to tell him, ashamed to tell him. जब बेटी आके बोलती है कि मेरा बाप पोर्नोग्राफी करता है, वो 85 ईयर्स ओल्ड है. एक बेटी ने आके बोला कि मेरा हस्बैंड है ना, मेरा बाप जो है 85 ईयर्स ओल्ड है, वो एक मेड के पीछे पड़ा है. बोला मेड के पीछे नहीं पड़ा है, मेड उसकी जायदाद के पीछे पड़ी है, क्योंकि वो मेड 35 साल की है, ये 85 का है. वो उसके क्यों पीछे पड़ा है और ये उसको क्यों बहला रही है? क्योंकि उसको उसकी जायदाद चाहिए. तुम बच्चे लोग पीछे हट जाओगे, उसको जायदाद दे देगा, वो मैरिज कर लेगा, उसके साथ पहला हक उसका बन जाएगा. दिस इज हाउ सेटन इज एक्टिंग. प्रेज द लॉर्ड. बहुत सी कहानियाँ हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लोगों की जीवन में, आप सुनोगे तो पागल हो जाओगे कि ऐसा भी होता है. यस, इट हैपन्स. बी वेरी केयरफुल. If you get a chance to get away from sin, go away, run away, run away, run away. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Sirach 37, 16 and 18 says, sinful action is the result of sinful thoughts and deliberations. जब हम पाप के ऊपर बार बार गौर करते हैं ना, sinful thoughts के ऊपर बार बार गौर करते हैं, तो वो एक्शन में बदल जाता है. So be very careful. So therefore, in order to keep sin out of your mind, we must forsake sinful thoughts and decisions. Sinful thoughts and decisions you have to forsake. Tell the Lord to bless you, He will do it. Completely you have to remove that. We must deliberately avoid all circumstances and contacts which lead us into sin. Momentary pleasure and profit from sin should be rejected totally. तुम नहीं बोल सकते कि मैं एक पार्टी में जाऊंगा, 25 आदमी दारू पी रहे हैं, मैं नहीं पीऊँगा. या 25 आदमी जा रहे हैं, मेरे 10 दोस्त जा रहे हैं लेडीज़ बार में रात को, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं तो एकदम फेथफुल हूँ अपना प्रभु का और अपने पत्नी का. तुम्हें कोई हक नहीं है. तुम जाओगे उधर, फंसोगे, फिसलोगे ज़रूर. यू कैनॉट एक्सपोज योर सेल्फ. डू नॉट पुट द लॉर्ड योर गॉड इनटू द टेस्ट. डोंट एक्सपोज. पीपल कम, brother, I have no control, I have failed. I said, stop meeting girls alone.
Whether it is in the office, whether it is in a restaurant, over a coffee, stop meeting them. Except your wife, you should not meet any girl alone. Because you are meeting alone, you are giving the full chance and exposure to fall into sin. You have to stay away from those circumstances. You are meeting people alone, and then fireworks will be there, spark will be there. Then you are already into sin, so you get a chance to sin and you will fall into sin. Same with a woman. If you are in the company of a single man who's all alone, and then you go out with him and have a date with him, or just, no, he's just my friend la. He's just a friend. Can I not have a friend? And that friendship will lead to chaos, mortal sin. A weak moment, Satan will tempt you. You are a goody girl. Satan can do everything. वो एक जो नाजुक क्षण आएगा, that weak moment, holiest of people can fall. Holiest of people can fall. It is very, very difficult. No, impossible. You cannot stop. So stay away deliberately from people and from sinful activity. Stay away. The moment you get into a conversation on WhatsApp or social media, be very careful आप क्या भेज रहे हो, क्या ले रहे हो. वहीं से आपको पता चलेगा. Sinful thoughts will start from there. Be very careful. नहीं बंद किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा. This is a fact of life. वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा. Then no, it is only a platonic relationship. You have already committed adultery in your heart. Hello? Already committed adultery. In your thoughts and in your words, what you have done, what you have failed to do, you have already committed adultery. Own fault, my fault, grievous fault. Grievous fault because expose किया. तुमने communication किया, उसके अंदर तुमने sinful intent से communication भेजा. Nowadays it has become very common. I love you has become very common. किसको भी I love you बोल देते हैं. I love you. बोले. Very common. So what यार, I love you. Mind is working overtime. Emotions are working overtime. Then the body starts working overtime. Then a weak moment, go into sin. Practicalities of life, whether you like it or you don't like it. डेविड ने पाप किया, इतना बड़ा, इतना प्रभु का इंसान था वो. He was God's man, very faithful, but he also sinned. When the weak moment came, he fell, and then he repented very badly. Against you alone have I sinned, my Lord, my God. Create in me a clean heart once more. Take away all my transgression. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Joseph, from the Old Testament, he was tempted by Potiphar, king's wife, but he did not give in. He said, how can I do this great wickedness and sin against God? He did not open up. He ran away from there. He was punished because of that, put into jail because of that. But he said, no, पाप नहीं करूँगा, प्रभु के against नहीं जाऊँगा. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Now let's come to the मुद्दा of the sacrament of reconciliation. जो आप करने जा रहे हो. What is the sacrament of reconciliation? It is a means of spiritual healing and reconciliation with God and the people of God. God and the church. Church is the body of Christ. So with God and with the people of God, reconciliation कैसे होगा? Through the sacrament of reconciliation. It restores the relationship of yourself to God and to the church and to the people of God, your own brothers and sisters. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So reconciliation restores the broken relationship with the God and with the church, emphasizing God's infinite mercy and forgiveness. Praise the Lord. Forgiveness of sins is very important. 1 John chapter 1 verse 9. First letter of St. John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, he who is faithful and just will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So the confession, when you go, confess your sins, he will cleanse you. When you come out of a confessional, I said you come from a laundry, cleansed, purified, sanctified, if you have done a good confession. रोक के रखा है पापों को अंदर, नहीं confess किया, then it's your fault. So that freedom has been given to you. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord.
Let us understand that through the sacrament of confession, sacrament of reconciliation, sacrament of penance, whatever you call it, sins are truly forgiven and the soul is restored to a state of grace. This is the supernatural miracle that happens when you go for a confession. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. What is penance? Penance involves sincere sorrow for your sins. That is sincere contrition, sincere sorrow for your sins, confession of your sins, and the acceptance of a penance. Absolution is the priest's declaration of forgiveness, granting you spiritual healing. Praise the Lord. Your job is to go with a sincere confession, contrition in your heart, sorrow for your sins, listing out all the sins, confession of the sin, full list, confession of the sin, and the acceptance of a penance, praying to the Holy Spirit, help me not to sin again. Praise the Lord. Hallelujah. And priest will give you the absolution. Priest is appointed and anointed to give you the sacrament of the confession through the absolution in the name of Jesus Christ. When the priest is giving you that, he is not that priest, he is persona Christi. He is in the person of Jesus Christ. Jesus is sitting there. Don't worry which priest you are going to. Uncle hai, cousin hai, koi bhi hone do. Any priest, he is a priest. He will even forget your sins. That is the grace of God. He will not, because for him it is a bigger mortal sin to disclose your sins to anybody. So he has to be, he is culpable. He is answerable for that. So you will not do. You go बेफिकर any priest. Don't think a priest या कैसा दिख रहा है यार इसके पास नहीं जाऊँ मैं अच्छा वाला थोड़ा handsome priest के पास है ऐसा मत सोचो. Don't think like that. Or I'll go to a priest who is very anointed. You know how do you know he is anointed? Just by his looks, by what he is speaking. No. The priest when he is sitting there, when a priest is celebrating Eucharist, he is not the priest. It is persona Christi. Jesus is celebrating the Holy Mass. Hallelujah. This is the wisdom of God you have to ask for. Okay, Lord, give me the wisdom to understand that when the Holy Eucharist is being celebrated, it is Jesus Christ, you yourself. And in the confessional, Lord, you are there. Jesus वहाँ पर है. वो priest के शक्ल मत देख रहे तू. जब वो wisdom and understanding हमारे अंदर आएगी ना, तो हमारा नजरिया बदल जाएगा. हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ priest को ढूंढते नहीं जाएंगे. I am going to this retreat, that retreat, so I will meet that priest and this priest and then I will confess. Or I am not going to parish priest, Lent में दूसरा priest आएगा, substitute, extra priest, उसके पास जाएगा. Parish priest के पास नहीं जाने, वो मेरे को जानता है. मैं बार बार वही चीज़ confess क्यों करूँ उसके पास जाके. वो बोलेगा क्या मेरे बारे में कैसा सोचेगा. वो मेरा घर में खाना खाने को भी आता है. This is normal है, very normal ना. You don't want to go to a priest because he is your friend or your father's friend or mother's friend or whatever, and you don't want to go to that priest again and again. Same sin la. Again and again, what he'll think about me? What Jesus will think about you? I am sitting here. You are not coming. You go and looking for priest. One lady came to me. I'll give you one beautiful example. Counseling on the phone. So when I was counseling, the Lord spoke to me. Ask her when she's done confession. She needs confession. So I asked her, sister, when was your last confession? Brother, I go from retreat to retreat. So many confessions. Last Saturday, Friday also I did confession in my church. It was first Friday. So many confessions. Well, sister, do you feel any need for doing confession? No. How many confessions I have done, brother? What to tell you? I said, okay. Then I started praying and we started talking and started praying. Again, the Lord is telling me, ask her to make confession, no? So I said, sister, do you still feel that there is no need for confession? No. I said, sister, can I send you one examination of conscience? Can you go through that and see whether, maybe some hidden sin, something you have not confessed or something? Okay, then she did. After 2 days, she calls me up. Brother, I went through examination of conscience. I got 2,000 sins. अयो, 2,000 sin तो पूरा confession examination convent में ही नहीं है. 2,000 sin किधर से आया इसका पास? Now I got 2,000 sins I have written down. Now no priest is going to take my confession with 2,000 sins. Praise the Lord. अब क्या करें इसका? Now I have to look for a priest, amenable priest, who is willing to listen and spend that much time. So I said, see sister, out of these 2,000 sins, you filter out some of the 4, 5, 10 sins which are more strong sins. Rest of them, put it on that paper and take the paper. Tell the priest, these are my major sins.
These are my minor venial sins and other sins. Father, I have sinned. I don't want to sin again. I'm truly sorry that I have sinned. I had not confessed these sins. Please, I don't want to sin. Holy Spirit, help me not to sin again. Father, forgive me. And Father will pray over you and pray over that paper, and He will bless you, and He will give you absolution, and He will grant you a penance. Go, do your penance, be set free, burn that paper, don't show it to anyone. Alas, I will have to run for priest. No priest is willing to. Which priest wants to waste so much time? बिकॉज इसका साथ और 10 उसका बहाने भी रहेंगे ना, ये पाप किया, क्यों किया, मेरा पति ऐसा था, मेरा बाप, मेरी माँ, सबको ब्लेम करेंगे हम लोग। एडम एंड ईव का जैसे, पाप क्यों किया, उसने बोला था, उसने किया था, दैट इज द मेजर थिंग. फादर, आई बीन वेरी बैड बॉय. व्हाई? बिकॉज माई वाइफ, you know, she's a witch. Even you wouldn't have been able to live with her. I am living for so many years. Then that is why I sinned. But Father, I'm sorry, I don't want to sin again. But somebody improve my wife. God, help my wife. Improve her, change her, transform her. I have sinned because of her. Otherwise, I would not. I am a good boy. That is how we make confession. So sorry. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. So when you go for confession, as we prepare,